too high. Righto, let's start new. He's gone just over 4 this season in the power play. Off the mark straight away, a scampered single. High class 50. Went very high as well, so that would be interesting to see how high that went, but finally lands on the roof. Beautiful. That's exactly where you want to be. It's an outstanding Yorker. There's a previous delivery towards a very Easy as you like. Yeah, well, he was really good in the first game. Took 3 wickets against Delhi. Oh, almost pulled off a blinder. Wow, that would have been just sensational to watch all around because the shot to begin with. Christy Moeen Ali. So no ball. Watch out for the free hit. I don't think we've seen a final over that's been just 6 balls. Another high full toss. He's looking for the Yorker, not finding it. Yeah, okay, can we just go take that back for ball tracking? Okay, the ball is clearly over the waist height of the batsman. You're on screen now. A better review from CSK. It was a much closer one than the one that RCB reviewed. Now, what's going to happen here is now officially there have been 2 waist height full tosses from the bowler. The umpires will have a chat about it. He was looking to the dugout. He was motioning for a right-hander to come out. And here the discussion is about the umpires telling Harshal Patel that you bowl 2 waist high full tosses and you can't be bowling further in the innings. That's been a rule that's been there in all formats and here in T20 cricket as well. So Maxwell has been told, and now they'll be thinking who's going to complete overs. Only just the 1 ball for him, a single. But what really matters is the bottom line there. CSK 226. You would think that's a good score, even on a ground like this. 227 is what the home side, the Royal Challengers of Bangalore, must get. Yeah, 227 is a... Kohli doesn't want him to, MS Dhoni does. Here's ball 1 of the chase. And that was a nice shot. They'll get a couple. There'll be a hustle on between Virat Kohli and Faf du Plessis. 1%ers will make sure they get those. But in the power play, it's the boundary count. Boundary, there's a twist. This one is not done. No, it's not. And when you're chasing so many. Nicely played, found the fielder. Oh, they're at one end, they're at one end. It stopped. Moeen thought it was done. In the end, it's a single. Just a single. 12 off that. Prabhadesai will keep strike. It's 208 for 7. Here we go. Looking 2, have to get back for 2, surely. Can't. Oh, take the catch. It's a wicket for Patirana. He's bowled beautifully at the back end. So tough all the way through. All the way through this game for bowlers. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे लगा आपको? हाइलाइट्स देख के मज़ा आया होगा। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि मैं भीलवाड़ा से हूँ, राजस्थान में है भीलवाड़ा ज़िला, उसके गांव में रहता हूँ मैं। तो अभी मैं छत पे आया हूँ और आप मौसम देख सकते हो। मौसम देख सकते हो आप, बिल्कुल बारिश जैसा होने में आ रहा है। और हमारे ऊपर कल मैंने पौधा लगाया था, उस पर फूल भी आ चुका है, आप देख सकते हो। कितना मस्त फूल है गाइस। इससे मिलो, ये है मेरा छोटा भाई नन्नू। हाय गाइस, इसका नाम नन्नू है। और ये पूरा दिन छत पे बैठा रहता है, पता नहीं अकेला क्या करता है यहाँ पे बैठ के। पूरा दिन ऊपर छत पे खेलता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है दोस्तों।
तो अभी बारिश का मौसम हो रहा है, देख सकते हो आप मेरे पीछे ऊपर बादल में। बहुत अच्छा मौसम है, इसीलिए सोचा कि मैं भी छत पर चला जाता हूँ, थोड़ी देर घूमूंगा फिरूंगा। और बारिश भी आने लग गई है दोस्तों, ये देखो हाथ के ऊपर मेरे फ़ोन भी पूरा गीला होने वाला है बिल्कुल। देखो आ गई है बारिश। ये कपड़े उठाने पड़ेंगे। क्या मम्मी को बोल के आ तो। ये देखो कपड़े, बारिश में कपड़े और गीले हो जाएंगे, इनको सही करना पड़ेगा पहले। देखो जोर से बारिश आ गई है, अब फ़ोन गीला होगा, मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा। देखो अरे शीला बहू, संतोष सबसे बड़ी पूंजी है, जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो बेटा। अरे माँ जी, पड़ोस वाली सरला के पास तो नया फ्रिज आ गया है, मैं कब तक ऐसे चूल्हे पर खाना बनाती रहूंगी। अरे माँ, जो हमारे पास है वो सब भी तो अच्छा है ना माँ। अरे नालायक, तू चुप कर, तू नहीं समझेगा, मुझे तो अभी बहुत कुछ चाहिए। तभी शीला के गांव सूरजपुर में अचानक से एक रहस्यमय संत बाबा का आगमन होता है। आओ आओ मेरे पास आओ बच्चों, जो भी एक बार सच्चे मन से मांगेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पर याद रहे, लालच नहीं करना है तुम लोगों को, नहीं तो उसका भुगतान तुम्हें खुद करना पड़ेगा। शीला तेजी से बाबा की ओर बढ़ती है। बाबा, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारे गहने, बक्से व महल जितना, जो कोई सोच भी ना सके, इतना सोना दे दो आप मुझे। बेटा, तूने एक बार में मांगने की शर्त तोड़ दी है, अब जो भी तुझे मिलेगा वो तुझसे तेरी खुशियाँ व तेरी धन दौलत जो भी है तेरे पास सब कुछ छीन लेगा। अब उसका भुगतान सिर्फ तू ही कर पाएगी। बाबा जी की ये बात सुनने के बाद शीला के घर में अचानक से भरपूर सोने की बारिश होने लगती है। अले माँ, ये सब अचानक से कैसे हो गया है? इतना सोना कहाँ से आ रहा है माँ? अरे बेटा, अब हम राजा जैसी जिंदगी जिएंगे, हमने बहुत जी ली गरीबों जैसी जिंदगी बेटा। कुछ ही पलों बाद सोना पिघल जाता है और पिघलकर आग में परिवर्तन हो जाता है। सारे घर वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूरा घर उनका आग में जलने लगता है। अरे माँ, गल टूट रहा है अपना और पूरे गल में आग लग गई है, अब हम कैसे बचेंगे माँ? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? अरे मुझे कोई बताओ, मैं क्या करूँ? मेरा सारा सोना जल गया, अब मैं क्या करूँगी? मैं फिर से गरीब बन जाऊंगी। अरे शीला बेटा, मैंने तो तुझे बहुत समझाया था कि लालच करना बुरी बला है, जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और लालच किया। अब देखो लालच करने का फल तुम्हें कैसा मिल रहा है, हम सब एक साथ बर्बाद हो गए। अरे माँ जी, आपने सही कहा था, लेकिन मैं लालच की उसमें अंधी हो गई थी, अब क्या करूँ माँ जी? मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो माँ जी। अले माँ, आप टेंशन मत लो, हम सब मिलके फिर से कुछ नया बना लेंगे माँ, धीरे धीरे मिलजुल कर सब सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए माँ। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है, संतोष में ही सुख है, लालच करने वाला इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। सूरजपुर एक छोटा सा गांव, जहां रामू अपने खेतों की देखभाल कर रहा होता है। अरे बबलू भैया, पापा कितनी मेहनत करते हैं ना। हाँ, लेकिन बारिश ना हो तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। रामू की पत्नी चिंता कर रही होती है, उनके घर में अनाज भी बहुत कम बचा होता है। हे भगवान, इस बार भी बारिश ना हुई तो खेत सूख जाएंगे, बच्चों के लिए क्या छोड़ूंगा। रामू, अगर फसल नहीं उगी तो जमीन मेरी हो जाएगी, कर्जा नहीं चुकाया तो घर भी छीन लूंगा तेरा। मेरी मेहनत से खेत हरा होगा ठाकुर, वक्त लग सकता है लेकिन हार नहीं मानूंगा।
रात में रामू खेत में अकेला बैठा होता है। तभी एक जादुई बूंद गिरती है और बारिश दादा प्रकट होते हैं। ओ धरती पुत्र, तेरी मेहनत देखकर मैं पिघल गया। तू कोई साधारण किसान नहीं, तू धरती का असली बेटा है। आप कौन हैं और मेरे खेत में क्या कर रहे हैं? मैं बारिश को चलाने वाला हूँ। आज तेरे खेत में पहली बूंद मैं खुद गिराने आया हूँ। आसमान से बहुत तेज और जोरदार बारिश होने लग जाती है और रामू का खेत हरा भरा हो जाता है और पूरे गांव में खुशियां भर जाती हैं। रामू भाई माफ कर दो, तुमने दिखा दिया कि सच्ची मेहनत हार नहीं मानती। पापा, आप ही हमारे सुपर हीरो हो। बेटा, किसान वो सूरज है जो खुद जलता है ताकि सबका पेट भर सके। पापा, क्या हम भी आपके साथ मिलकर अपने खेत पर काम कर सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन पहले पढ़ाई करो ताकि कल को तुम मेरे जैसे मेहनत करो, लेकिन और भी समझदारी से। और पापा, मैं तो बड़ा होकर किसान और इंजीनियर दोनों बनूंगा। अब गांव में बदलाव की लहर शुरू हो गई थी। रामू गांव के और सारे किसानों को इकट्ठा करता है। भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ मौसम पे निर्भर न रहे, हमें नई खेती की तकनीक सीखनी होगी। रामू भैया, लेकिन नई तकनीक कैसे सीखेंगे हम लोग? ठाकुर अब बदल चुका होता है। वह भी रामू के इकट्ठा किए गए लोगों के साथ वह भी इकट्ठा हो जाता है। रामू भाई, अब मैं भी सीखना चाहता हूँ कि असली ताकत जमीन को लूटने में नहीं है, बल्कि उसे संवारने में है। अरे ठाकुर, जमीन तब मुस्कुराती है जब उस पर मेहनत की खुशबू चढ़ती है, और अब आप भी खुशबू का हिस्सा है। रात का समय हो गया था। रामू अपने बच्चों के साथ में बैठा होता है। पापा, आप अब आगे जाकर और क्या करना चाहते हो? बेटा, अब मेरा एक ही सपना है, हमारी गांव की फसल अब विदेश तक पहुंचे, हमारा धरती पुत्र ब्रांड बने, ताकि दुनिया जाने भारतीय किसान क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अरे पापा, फिर तो हम सब टीवी पर भी आएंगे, है ना? हाँ बेटा, लेकिन पहले खेत में मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम टीवी पर आएंगे। गांव में एक अफवाह तेजी से फैलने लग जाती है कि वहाँ एक फैक्ट्री बनने वाली है जो सारे किसानों के खेतों को खरीद लेगी। रामू, सब कह रहे हैं कि गांव में फैक्ट्री बनने वाली है, तो हम सबकी जमीनें खरीद लेंगे लोग। हमारी मिट्टी कोई सामान्य मिट्टी नहीं है जो बिक जाए, ये हमारी माँ है, हम इसे ऐसे नहीं बिकने देंगे। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो, हम बिल्कुल आखिरी तक लड़ेंगे हमारी जमीन के लिए, ऐसे हमारी जमीन को नहीं जाने देंगे। इसी तरह धरती पुत्र रामू किसान के ऊपर नई नई परेशानियां आती रहती है, लेकिन वह उन नई नई परेशानियों का डटकर सामना करता है।